Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 70 to Section 72 of Criminal Procedure Code 1973, which is dealing with the concept of warrant. So in the previous lecture we have discussed the provision of summons if the summons is served against any accused person and if that accused person or the person summoned fails to remain present before the court of law, then court can issue a warrant against that particular person. So in section 70 to section 72 we will discuss the form of warrant and when the police is having a power to security to be taken, कब बेल पे छोड़ सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. एज वेल एज वी विल डिस्कस वारंट टू हुम डायरेक्टेड, वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. एज वेल एज वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस टॉपिक एंड द प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Warrant section 70 to section 72 we will discuss. So section 70 deals with form of warrant of arrest and duration. So every warrant shall be in writing. So whenever the court issues a warrant cannot be in oral form, it shall be in written form. तो वारंट जब कभी भी कोर्ट इशू करेगा तो पहला फॉर्म वारंट का यही है कि वारंट शैल बी इन राइटिंग. तो वारंट रिटन फॉर्म में होना जरूरी है, इट कैनॉट बी इन ओरल फॉर्म. देन इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वारंट इज वारंट शैल बियर द सील ऑफ अ कोर्ट. वारंट पे कोर्ट की सील होना चाहिए, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, यानी कोर्ट का स्टैम्प, सील. सो वारंट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. विदाउट द सील ऑफ द कोर्ट वारंट इज नॉट अ लीगल वारंट. तो वारंट सही नहीं होगा, वारंट रियल सेंस में नहीं होगा. सो इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट. देन साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. Warrant shall be signed by the presiding officer. Suppose if the warrant is in written form, warrant bears the seal of a court, but it does not have, if it didn't have a sign of a court and presiding officer, that warrant will not be a proper one. अगर किसी वारंट रिटर्न फॉर्म में भी है, उस पर कोर्ट की सील भी है, लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की उस पर सिग्नेचर नहीं है तो वारंट रियल सेंस में वारंट नहीं कहलाएगा. देन it shall bear the full name, caste, nationality and address of a persons to be arrested should be entered so as to place the identity beyond reasonable doubt. So in a warrant there shall be a full name, caste, nationality and address of persons to be arrested. So whenever the court issues a warrant against any accused person or against any person, then in that particular warrant the correct name of that accused person shall be mentioned, his caste shall be mentioned, nationality and his full address shall be mentioned in that particular warrant. So his identity will be clear down. तो उसकी identity clear होना चाहिए, beyond reasonable doubt उसकी identity reveal होना चाहिए, जिसके जरिए पुलिस उसको आसानी से अरेस्ट कर सके. So these are the particular form of warrant. देखो, the offense charge shall be specified in the warrant. Then whenever the court issues a warrant, court shall mention a charge in that particular warrant, कि किस चार्ज में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, कौन से ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस इसमें वारंट में वो भी मेंशन होना जरूरी है. अ वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड. देखो, सेक्शन 70 डील्स विद फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. तो फॉर्म ऑफ वारंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट शैल बी इन राइटिंग, इट शैल बियर द सील ऑफ अ कोर्ट, इट शैल बियर द सिग्नेचर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. देन इन दिस पर्टिकुलर वारंट
the name, address, nationality will be mentioned. Then the charge shall include in the warrant. A warrant shall remain in force until it is executed or cancelled. So what exactly the duration of warrant is there? So warrant का duration क्या है? Warrant shall remain in force until it is executed or cancelled. तो वारंट कंटिन्यू कब तक रहेगा? एक तो वारंट एग्जीक्यूट होना पड़ेगा. वारंट एग्जीक्यूट कब हुआ? अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया, अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, इसका मतलब वारंट एग्जीक्यूट हो गया. तो वारंट तब तक फोर्स में रहेगा जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, या जो कोर्ट ने वो वारंट इशू किया वो कोर्ट उस वारंट को कैंसिल नहीं कर देता. तो फॉर एग्जांपल अगर आज कोर्ट ने वारंट इशू किया और वारंट 2 साल तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ना तो कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, तो वारंट 2 साल तक भी चलेगा, वारंट 3 साल तक भी चलेगा. तो वारंट का देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ वारंट. वारंट का कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है कि वारंट की लिमिटेशन क्या है, उसका पीरियड क्या है. देयर इज नो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ वारंट. ओनली वारंट कब तक फोर्स में रह रहा, एक तो वो एग्जीक्यूट होना या तो कैंसिल होना, तब तक वारंट विल कंटिन्यू, वारंट कंटिन्यू में रहेगा. सो एज सुन एज द पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन इशूड इज अरेस्टेड, इट कम्स टू एन एंड. जैसा ही जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया वो अरेस्ट होता है, वारंट खत्म हो जाएगा वहीं पर. वारंट कम्स टू एन एंड. अब देखो सेक्शन 70 पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, दैट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट. क्या सही है फॉर्म ऑफ वारंट के से रिलेटेड? द फर्स्ट वन इज इट शैल बी इन राइटिंग, इट शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट, इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के फॉर्म ऑफ वारंट में क्या है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड shall be in writing, signed by the presiding officer, and it shall bear the seal of the court. So the correct answer is all of the above. राइटिंग में भी होना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सिग्नेचर भी होना और कोर्ट की सील भी होना. सो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. नाउ सेक्शन 71 deals with power to direct security to be taken. So any court issuing warrant for the arrest may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court, the person executing warrant can release that person. So whenever the court issues a warrant, so if while issuing such a warrant, any court issuing a warrant for the arrest may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person execute a bond with sufficient sureties for his attendance before the court, the person executing warrant can release that person. Suppose if the offense is a less serious one, under such a circumstances, while issuing a warrant, such court can endorse on the warrant itself that if the person to whom the police officer arrest, जिसको वो अरेस्ट करना चाहता है, if that person is ready to furnish surety for his attendance before the court of law, then such police officer can release that accused person. एक आधा लेस सीरियस ऑफेंस है तो कोर्ट जो वारंट इशू कर रहा है वो वारंट इशू करते वक्त इस पे वारंट पे ही इंडोर्स कर देगा कि अगर वो अक्यूज्ड बेल देने के लिए तैयार है तो पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी देगा कि उसकी बेल ले लेने का, उसका श्योरिटी वो फर्निश करेगा, वो श्योरिटी के डॉक्यूमेंट लेने का और उसको वहीं पर रिलीज करके वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए. तो दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 71. अब देखो द इंडोर्समेंट शैल स्टेट. अब जो इंडोर्स करेगा कोर्ट, वो इंडोर्समेंट में क्या क्या होना जरूरी है? द इंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटीज, द नंबर ऑफ श्योरिटीज. जब कभी भी कोर्ट इंडोर्स करेगा वारंट पे कि अगर वो बेल देने के लिए तैयार है तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाए, तो बेल नंबर ऑफ श्योरिटी कितनी होना चाहिए? मतलब 5,000 की जमानत, 10,000 की जमानत, 15,000 की जमानत, एक जमानतदार, 2 जमानतदार. जमानत का नेचर क्या रहने वाला है? द नंबर ऑफ श्योरिटीज मस्ट बी मेंशन. वो इंडोर्समेंट क्या रहेगा? नंबर ऑफ श्योरिटी मेंशन करेगा वारंट में कोर्ट. देन द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, यानी श्योरिटी एक रहेगा, नंबर ऑफ श्योरिटी मतलब जमानतदार एक रहेगा या 2 रहेंगे या 3 रहेंगे, वट एवर इट में भी, तो नंबर ऑफ श्योरिटी मेंशन करेगा वारंट में कोर्ट. दूसरा द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड का अमाउंट क्या रहेगा.
श्योरिटी का अमाउंट क्या रहेगा, 5,000, 10,000, 15,000, वट एवर इट मे बी। तो ये एंडोर्समेंट में वारंट में ही मेंशन करना पड़ेगा कोर्ट को। देन द टाइम टू बी अपीयर बिफोर द कोर्ट। तीसरी चीज एंडोर्समेंट में कोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा कि इफ द अक्यूज्ड इज रेडी टू फर्निश अ बेल, इन्फॉर्म हिम टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सो डेट। तो वो वारंट में डेट भी मेंशन करेगा कोर्ट को कि अगर अक्यूज ने बेल दिया तो उसको ये डेट में कोर्ट में प्रेजेंट रहने का कहा जाए। सो दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 71। इफ अक्यूज्ड एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड फॉर हिज रिलीज, द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर शॉल सेंड द सेड बॉन्ड टू द कोर्ट। अगर वो अक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट में कोर्ट ने ऐसा एंडोर्समेंट किया, अगर वो बेल उसने दे दिया, उसने एग्जीक्यूट किया बॉन्ड, तो वो पुलिस ऑफिसर बॉन्ड को कहां प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा वो बॉन्ड को। सो दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 71। नाउ सेक्शन 72, वारंट टू हुम डायरेक्टेड। तो वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा। सो वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। तो ऑर्डिनरी सेंस में वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा, वारंट कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट डायरेक्ट करेगा एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को, और वो जाके वारंट एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखो, इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर देन एनी अदर पर्सन। सपोज इफ द इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट इज नेसेसरी एंड इफ देयर इज नो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है और कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन। तो कोर्ट क्या करेगा, पुलिस के अलावा कोई दूसरे कोर्ट के एम्प्लॉय को वारंट डायरेक्ट कर सकता है इन अब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। जनरल रूल ये है कि कोर्ट वारंट डायरेक्ट किसको करेगा, डायरेक्शन किसको देगा अरेस्ट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट करेगा। पुलिस ऑफिसर नहीं है तो एनी अदर पर्सन। It may be executed by all or by any one of them or more। देखो सिचुएशन ऐसी है कि हमने पहले ही वर्डिंग देखे थे कि वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है। सपोज इफ द कोर्ट डायरेक्ट्स अ वारंट टू मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया कोर्ट ने, अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय वन और बाय ऑल। मतलब 4 लोगों को वारंट डायरेक्ट किया कोर्ट ने, तो वारंट चारों में से कोई एक भी एग्जीक्यूट कर सकता है या चारों मिलके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन 72 पे पूछा गया क्वेश्चन है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में, अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन। अभी देखो, अब यहां पर ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, ए एंड बी ओनली, ए बी सी ऑल। तो हम अगर देखें एक्सप्लेनेशन में तो इट इज अ वेरी क्लियर दैट अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। ऑर्डिनरली किसको डायरेक्ट किया जाएगा, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को। इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर देन एनी अदर पर्सन। तो हम देखें कि जो ऊपर क्वेश्चन में ये ए में बताया हुआ है पुलिस ऑफिसर, तो वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा। मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, ये भी सही है, कोर्ट एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकता है। और एनी अदर पर्सन, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो एनी अदर पर्सन को भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है वारंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ए बी सी, सब मतलब सब सही है यहां पर। So that is a provision of section 70 to section 72 relating to warrant. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.